Welcome viewers. My name is Ahsan Madar and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation. व्यूअर्स, आज प्रोसेस वेरिएबल लेवल का लेक्चर नंबर 8 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ LRV एंड URV, व्हाट इज़ LSL एंड USL, व्हाट इज़ जीरो एंड स्पैन, व्हाट इज़ रेंज एंड लेवल मेजरमेंट यूनिट्स। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ LRV एंड URV। LRV इज़ लो रेंज वैल्यू एंड URV इज़ अपर रेंज वैल्यू। In low range value transmitter give us 4 milliampere and in upper range value transmitter give us 20 milliampere. For example, if LRV is equal to 0 mm of H2 and URV is equal to 1000 mm of H2O, then on 0 mm of H2O transmitter shows 4 milliampere and on 1000 mm of H2O transmitter shows 20 milliampere. Viewers, LRV हमारे पास लो रेंज वैल्यू जबकि URV हमारे पास अपर रेंज वैल्यू होती है। LRV के अंदर हमारे पास ट्रांसमीटर 4 मिलीएम्पेयर जबकि URV के अंदर हमारे पास ट्रांसमीटर 20 मिलीएम्पेयर शो करता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास LRV 0 जबकि URV हमारे पास 1000 mm ऑफ H2O है तो 0 mm ऑफ H2O के अंदर ट्रांसमीटर 4 मिलीएम्पेयर शो करेगा जबकि 1000 mm ऑफ H2O के अंदर ट्रांसमीटर हमारे पास 20 मिलीएम्पेयर शो करेगा। एवरी ट्रांसमीटर हैव डिफरेंट LRV एंड URV डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। दूसरे नंबर पे हमारे पास है व्हाट इज LSL एंड USL। LSL is lower scale limit and USL is upper scale limit. Basically, LSL and USL is the range of transmitter capsule. Every transmitter have different capsule range. Viewers, LSL हमारे पास lower scale limit जबकि USL हमारे पास upper scale limit होती है। Basically, LSL and USL ट्रांसमीटर के कैप्सूल की रेंज होती है और हर ट्रांसमीटर के कैप्सूल की रेंज डिफरेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज जीरो एंड स्पैन। Every transmitter have zero and span. We can be defined what is zero and span in transmitter. For example, if the transmitter range is 0 to 1000 mm of H2O, then 0 is transmitter 0, means in 0 mm of H2O transmitter shows 4 milliampere. Viewers, हर ट्रांसमीटर का जीरो और स्पैन होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ट्रांसमीटर की रेंज 0 to 1000 mm of H2O है तो 0 mm of H2O के अंदर ट्रांसमीटर हमारे पास 4 मिलीएम्पेयर शो करेगा जो कि हमारे ट्रांसमीटर का जीरो कहलाता है। Span is full reading of transmitter, means in 1000 mm of H2O transmitter shows 20 milliampere. जबकि फुल स्केल रीडिंग यानी कि 1000 mm of H2O को हम स्पैन बोलते हैं और फुल स्पैन के अंदर हमारे पास ट्रांसमीटर 20 milliampere शो करता है। Another way we can be define span. Span is equal to URV minus LRV. व्यूवर्स, हम स्पैन को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्पैन का फार्मूला हमारे पास होता है URV minus LRV. For example, if LRV is equal to 0 and URV is equal to 1000 mm of H2O, then span is. Viewers, अगर हमारे पास LRV और URV गिवन हो तो हम स्पैन कैसे निकाल सकते हैं? तो स्पैन हमारे पास होता है URV माइनस LRV। तो 1000 माइनस 0 तो हमारे पास स्पैन 1000 mm of H2O निकल आएगा। यानी कि LRV और URV के डिफरेंस को हम स्पैन बोलते हैं। Another example. If LRV is equal to 200 and URV is equal to 1000 mm of H2O, then span is 1000 minus 200. तो स्पैन हमारे पास 800 mm of H2O निकल आएगा। Another example. If LRV is equal to minus 600 and URV is equal to 100 mm of H2O, then span is. तो URV हमारे पास 100 माइनस फार्मूले का और LRV हमारे पास माइनस 600 है तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा तो स्पैन हमारे पास 700 mm of H2O निकल आएगा। Another example, if LRV is equal to minus 500 and URV is equal to 200 mm of H2O, then span is. तो URV हमारे पास 200 जबकि LRV हमारे पास माइनस 500 है और माइनस फार्मूले का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो स्पैन हमारे पास 700 mm of H2O निकल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज रेंज। रेंज इज डिफाइंड एज द वैल्यू नंबर ऑफ LRV एंड URV. For example, if LRV is equal to 0 and URV is equal to 500 mm of H2O, then range is 0 to 500 mm of H2O. Viewers, रेंज हमारे पास LRV और URV होती है। मिसाल के तौर पर LRV 0 जबकि URV 500 है तो रेंज हमारे पास 0 to 500 आएगी। Another example, if LRV is equal to minus 700 and URV is equal to 0, then range is minus 700 to 0 mm of H2O. Another example. If LRV is equal to minus 500 and URV is equal to 300 mm of H2O, then range is minus 500 mm of H2O to 300 mm of H2O. व्यूअर्स, रेंज को यहाँ पे डिफाइन करने का मकसद ये था
कि जो हमारे पास छोटी वैल्यू होगी उसको हम पहले लिखेंगे, यानी कि 0 to 500, -700 to 0, -500 to 300, यानी कि जो छोटी वैल्यू होगी उसको हम पहले लिखेंगे। लास्ट में हमारे पास है लेवल मेजरमेंट यूनिट्स। वी हैव यूनिट स्टैंडर्ड्स CGS। पहले नंबर में हमारे पास CGS है, जिसके अंदर लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर, मैथ्स हमारे पास ग्राम के अंदर और टाइम हमारे पास सेकंड के अंदर मिलता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास FPS है, यानी कि लेंथ हमारे पास फीट के अंदर, मैथ्स हमारे पास पाउंड के अंदर और टाइम हमारे पास सेकंड के अंदर होता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है MKS, यानी कि लेंथ हमारे पास मीटर के अंदर, मैथ्स हमारे पास किलोग्राम के अंदर और टाइम हमारे पास सेकंड के अंदर होता है। लास्ट में हमारे पास है SI, सिस्टम इंटरनेशनल लेवल मेजरमेंट। इन इंडस्ट्रियल लेवल वी आर यूजिंग SI। वी यूज़ यूनिट्स फॉर लेवल मेजरमेंट सच एज मीटर और mm। व्यूअर्स, इंडस्ट्रियल लेवल के अंदर हम सिस्टम इंटरनेशनल को फॉलो करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो लेवल मेजरमेंट है वो मीटर या mm के अंदर हम लेते हैं। वी कैन कन्वर्ट दीज यूनिट्स इनटू अनदर सच एज। व्यूअर्स, अगर हमारे पास 1 मीटर है तो वो 1000 mm ऑफ H2O के इक्वल है, यानी कि जो हम रेंजेस निकालते हैं उसको ज़्यादातर हम mm के अंदर लेते हैं, यानी कि हम सिस्टम इंटरनेशनल को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास 1 मीटर हो तो इसको हम दूसरे यूनिट्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 1 मीटर हमारे पास 100 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह 3.2 फीट और 39.37 इंचज़ के बराबर होता है। व्यूअर्स, इस तरह हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट्स के अंदर आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल के अंदर हम ज़्यादातर मीटर या mm को इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ लेवल ट्रांसमीटर एंड टाइप्स ऑफ लेवल ट्रांसमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।